chemical kinetics. First formula is K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X. T half is equal to 0.693 upon K. 0.693 upon K. K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X, and T half is equal to 0.693 upon K. First order reaction. And second formula is X is equal to K naught T. T half is equal to 0.693 upon K. T half is equal to 0.693 upon K. For X is equal to K naught T. This is first order reaction. Formula is first order reaction. ये जो फॉर्मूला है ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया, और ये फॉर्मूला जीरो ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Rate of reaction is directly proportional concentration of reactants according to rate law. According to rate law, ये law of mass action. Law of mass action. Law of mass action. Right? So rate of reaction is equal to K, A की power 0 for zero order reaction, and second is rate of reaction. Rate of reaction is directly proportional concentration of reactant power 1. So rate of reaction is equal to K power 1 of A concentration. Rate of reaction is equal to A की power 1. Yes, तो अपने पास यहाँ पर टोटल फॉर्मूले हो गए. K is equal to K A की power 0 and rate of reaction is equal to K A की power 1. This is first order reaction. First order reaction, and this is zero order reaction. याद रखेंगे ये जो आपने यूज में लिया ये फॉर्मूला, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, और ये आपने फॉर्मूला यूज में लिया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, बिकॉज जीरो पावर ऑफ जीरो, और जो पावर होती है वही किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इस जगह क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. राइट, ये अपने पास कंप्लीट हो गया. कुछ डेरिवेशन हम और देख लें. relationship between T 99.9% and T half. Relationship between T 99% and T half. और ओके, T 90.9% for first order reaction. For first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T 99.9% अपने को चेक करना है. राइट, सो ओके, T 90.9% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन K log A upon A minus X. Suppose that A is equal to 100%, तो A minus X is equal to कितना हो जाएगा, A 100 minus T 99.9% is equal to 0.1%. Right? T 99.9% is equal to 2.303 upon K log 100% upon A minus X is equal to 0.1%. यहाँ पर कर दिया मैंने 0.1. पॉइंट रिमूव करेंगे तो 0 लगा देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T 90.9% is equal to
2.303 upon k log 1000. Okay, so 399.9% is equal to 2.303 upon k log 10 की power 3. 3 log 10 it means 3 log 10. 3 log 10 means यहाँ देखो log 10 की power 3 it means 3 log 10 और 3 log 10 means क्या हो जाएगा, log की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा, log 10 की पावर 3 is equal to 3, राइट. तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड t हाफ is equal to क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन k. ये फिर ऐसे कर दें t हाफ is equal to 2.303 अपॉन k log 2 because the a upon a minus x means x is equal to 1/2 t हाफ के अंदर इनिशियली कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियली कंसंट्रेशन, हाफ कंसंट्रेशन इन इनिशियली कंसंट्रेशन. जो आपने इनिशियली कंसंट्रेशन लिया है उसका हाफ कर देंगे तो x is equal to कितना आ जाएगा a/2. तो x की जगह पुट कर देंगे a/2 तो अपने पास क्या आ जाएगा a minus a/2. तो a minus a/2 is equal to a/2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा भाई, a to a कैंसिल हो जाएगा. तो अपने पास राइट आंसर a t half is equal to 2.303 upon k log और log 2 आ जाएगा. log 2 means 0.3010. t half is equal to 2.30 upon k log 2 0.30, right. Equation number second and equation number first. Equation second and first. Equation first divided by equation second. Equation first divided by equation second. Equation first is t 99.9% is equal to 2.303 upon k log a upon a minus x. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 2.303 upon k log 3 और log 3 की वैल्यू यहाँ पर log 2.303 upon k multiply 3 upon t half 2.303 upon k multiply 0.30, 2.303 upon k multiply 0.30. इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या जाएगा अपने पास t 99.9% upon t half is equal to 3 upon 3.0. पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो, 10 हो रहा जाएगा. इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स. अपने पास क्या जाएगा t 90.9% is equal to 10 into t half. ये अपने पास क्या जाएगा आंसर है. ये अब देखो क्या करना था, ये तो प्रूव करना था t half is equal to t 99.9% एंड t half के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा t 99.9% t half का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा. बात समझ में आई बिल्कुल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हम देखेंगे. यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी वगैरह कंप्लीट हमने कर ली थी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed 20% in 10 minutes. Then what time will be required
required to complete 75% of reaction. 75% of reaction. ये अपने पास क्वेश्चन है. A first order reaction is completed 20% in 10 minutes. Then what will be the time required to complete 75% of reaction? तो look it. अपने को क्या करना है, इसका आंसर देखें किस टाइप से करना है. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, k इक्वल टू लगाना है 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x. राइट. अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीट 20% इन 10 मिनट. 20% कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो बस कितना गया 80%. तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 10 मिनट log a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर. a की वैल्यू देखो भाई कुछ नहीं दे रखा, 100 मान ले, और इसमें से 100 में से कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 100 माइनस 20% कितना आ जाएगा 80%. तो ये आ गया 80. 0 to 0 कैंसिल. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 अपॉन 8. राइट. इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो आगे सोल्व करें. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 माइनस log 8. log को जब आप सोल्व करेंगे आगे तो log 10 माइनस क्या हो जाएगा log 8. ओके. तो log 10 की वैल्यू 1 और log 8. log 10 इज इक्वल टू 1 log 8. log 8 मींस 2 की पावर 3 log 2 0.30 इट मीन 0.60. log 2 की पावर 3 की वैल्यू 0.60. राइट. 14 log 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 1 माइनस log 8 की वैल्यू 0.60. k is equal to 2.303 upon 10 log 3 3 या 9 0.90. ओके. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.10. इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड. अपने पास क्या जाएगा इक्वेशन फर्स्ट. ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई. ठीक है. अब अपने को सेकंड इक्वेशन लेके k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x. ठीक है. तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x. a 100% हो गया तो 75% इज कंप्लीट. रिक्वायर्ड टाइम और 70% कंप्लीट इन रिएक्शन. रिएक्शन के अंदर ये 70% कंप्लीट हो गया तो अपने को टाइम रिक्वायर्ड चाहिए. तो क्या करें यहाँ पर 70% कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाएगा 25%. राइट आंसर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k t log और 24 जा 100 log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 अपॉन log 4 0.60. राइट. इक्वेशन नंबर सेकंड. ऐसे करते हैं t को इस साइड के अंदर सेंड कर दो या फिर ऐसे करो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड. तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 into multiply 0.10 upon k is equal to 2.303 upon t और ये मल्टीप्लाई 0.60. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सॉरी 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा. k से k कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बच गया अपने पास t के ऊपर चला जाएगा 10 नीचे. तो t अपॉन 10 is equal to 0.10. सॉरी ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल. ठीक है. तो 0.1 और 0.1 इज इक्वल टू 0.60 अपॉन t. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा 0.t इधर लेके आ जाओ. t इज इक्वल टू 0.60 अपॉन 0.10. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट. t इज इक्वल टू क्या जाएगा 60 मिनट. ये अपने को सोल्व करना है इस टाइप से. जो बुक के अंदर दे रखो 62.8 मिनट दे रखा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि log की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली अपने पास राइट आंसर नहीं है log के लिए. जो हम जो याद कर रहे हैं 10/8 जो हम फिक्स वैल्यू तो है नहीं, इस वजह से अपना रोम थोड़ा आगे पीछे आ रहा है. यदि लॉगरिथम यदि आपको दे क्वेश्चन के अंदर तो उस log की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर एकदम राइट आएगा 62.5%. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Following data is obtained the thermal decomposition of N2O5 is constant volume. क्या क्या दे रखा है N2O5 का डिकम्पोजिशन दे रखा है. कन्वर्ट टू 2NO2N2O4
प्लस O2, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। और थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होगा तो N2O4 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट होगा, जो कि क्या अपने पास एक थर्मल डिकम्पोजिशन की ये वैल्यू दे रखी है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो टेबल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 टाइम पर जो प्रेशर दे रखा है वो 0.500 दे रखा है। T इक्वल टू 0 टाइम, इसमें जो प्रेशर दे रखा है टोटल प्रेशर 0.500 दे रखा है, ये ATM, राइट। T इक्वल टू 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो है 0.512 ATM, 0.512 ATM। और अपने को क्या करवाया, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस क्वेश्चन के अंदर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपने को ये तो पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फार्मूला है वो है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X। Next question, the rate constant of first order reaction is 60 seconds. How much will be required to decompose 1/10 part of initially concentration? A minus x is equal to कितना हो जाएगा, A minus 10। देखो यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है कितना, 1/10 पार्ट ऑफ इनिशियली कंसंट्रेशन। तो A minus x is equal to इनिशियली कंसंट्रेशन 1/10 is equal to A initially is equal to क्या हो जाएगा, A suppose that A initially concentration then A minus x is equal to A by 10। T अपने को फाइंड आउट करना है, तो K1 is equal to 60 सेकंड in question given. So first order reaction is formula is K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X. K value of K 60 second. So 60 second inverse is equal to 2.303 upon T log A minus X is equal to A by 10, A by 10, A by 10, A to A cancel, तो 10 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, T is equal to 2.303 upon T, value of T अपने फाइंड आउट करना है। 60 सेकंड को यहाँ आपने क्या कर दिया, नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू log A अपॉन A से कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 60 सेकंड। ओके, ये अपने पास हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 सेकंड। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, डिकम्पोज ऑफ N2O5 कन्वर्ट टू N2O4 प्लस 2O2, टाइम 0, टोटल प्रेशर ऑफ 0.50 ATM, T is equal to 100 सेकेंड, 0.512 ATM। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो भाई, रेट कांस्टेंट, प्रेशर एंड रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस X। A अपॉन A माइनस X के लिए अपने को पुट करना है PI अपॉन PT, PI अपॉन PT, इनिशियली प्रेशर अपॉन फाइनली प्रेशर, राइट। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इनिशियली प्रेशर और फाइनली प्रेशर अपने को पुट करना है। तो यहाँ से अपने को इनिशियली प्रेशर और फाइनली प्रेशर अपने को देखना है। तो T इक्वल टू 0 टाइम पर तो पूरे सिस्टम का जो प्रेशर है वो 0.500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। बट T इक्वल टू 100 सेकंड के ऊपर जो सिस्टम टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम 0.512 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सोल्व इट, अपने को सोल्व कैसे करना है, 2N2O5 कन्वर्ट टू 2N2O4 प्लस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो देखिए T इक्वल टू 0 टाइम पर अपने को क्या लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज 0.500 ATM, बट प्रोडक्ट एंड साइड के अंदर 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, बिकॉज़ T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये जो रिएक्शन जो स्टार्ट है ये इनिशियली कंसंट्रेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। T इज इक्वल टू T टाइम पर अपने को चेक करना है, तो 0.500 माइनस क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा 2x, और इधर क्या आ जाएगा 2O2 नहीं 2x आ जाएगा यहाँ पर x, ठीक है। तो देखो भाई, टोटल प्रेशर
गिवन इन क्वेश्चन 0.512 atm, राइट। तो यहाँ से इन सभी को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.500 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 0.512, राइट। 2x कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 0.500 प्लस x इज इक्वल टू 0.512, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.500 माइनस 0.512, सॉरी 0.512 माइनस 0.500, तो अपने पास जाएगा 0.012 atm, x इज इक्वल टू 0.012 atm, राइट। अब अपने को क्या करना है, देखें x इज इक्वल टू 0.012 में प्रेशर जो है अपने पास x की वैल्यू आई है, तो अपने को चाहिए pt भी किसका N25, बट अपने पास जो ये जो प्रेशर जाएगा 0.512 ये पूरे सिस्टम का है, N25 N24 और O2, बट अपने को ओनली किसका चाहिए, रिएक्टेंट साइड, इट मींस N2O5, तो पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास pt इट मींस N2O5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.500 माइनस 2x, राइट। 0.500 माइनस 2x, x मींस 0.012, राइट। 0.500 माइनस 0.024, राइट। 0.0500 माइनस 0.024 को जैसे माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 0.476 atm, राइट। ये अपने पास आंसर आ गया, ये तो pt आ गया, और b इनिशियली कौन सा हो गया, ये अपने पास p इनिशियली हो गया, राइट। चलो प्रूव कर लो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log p इनिशियली कितना है अपने को, p इनिशियली 0.500 अपॉन p टोटल 0.476, जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास जाएगा 2.303 log 1.05 k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, रेट कांस्टेंट जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये तो फाइंड आउट करवाना है। टाइम 0 to 100 सेकंड, तो 100 आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 log 1.05 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02, कितनी आ जाएगी 0.02, याद रखना है log 1.05 इज इक्वल टू 0.02, जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 to the power 606 into 10 की पावर -2 1 2 3 4 5 10 की पावर -5 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो आंसर अपने पास जो राइट आंसर है इसका जो आएगा वो है 4.93 into 10 की पावर -4 और के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट आएगी वो आएगी सेकंड इनवर्स, तो k इज इक्वल टू 4.60 into 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स। यहां तक कंप्लीट समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 और चैप्टर का लास्ट का क्वेश्चन जो है 12 नंबर चेक कर लेना। 12 क्वेश्चन, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ अ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ। देखो पहले तो इसने बोला है कि जो कंसंट्रेशन है उसको तो कितना कर दिया जाए डबल, और फिर उसके बाद में बोला है सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसका हाफ कर लें। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखें, इसने बोला ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, अपने पास कोई भी रिएक्टेंट है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इट मींस यहां पे क्या कर दिया टू, तो अपने पास अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। ठीक, इसको ऐसे कर सकते हैं R1 इज इक्वल टू K A स्क्वायर,
ये तो अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन में बोला है यदि इस इनिशियली कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, डबल, रिएक्टेंट को डबल कर दे तो क्या होगा भाई, इसके अंदर देखें, चलो कर दो, तो अपने पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डबल हो गया, कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर, डबल 2a, और यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इट मींस R2 इज इक्वल टू K 2a स्क्वायर। याद रखना है कि K की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी, उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों के अंदर ही फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इट मींस ये K2 रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो अपने को इक्वेशन नंबर ये अपने पास आ गई सेकंड, इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 = K 4a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन K 4a स्क्वायर, K to K कैंसिल, a स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल, इट मींस R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R1, इट मींस क्या हो जाएगा, इनिशियली कंसंट्रेशन का कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम R2, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियली कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, जो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन है उसका 4 टाइम हो जाएगा कौन, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड। ये तो हो गया जब आपने क्या किया सेकंड, जब इसे इनिशियली कंसंट्रेशन का हाफ कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा K a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K a by 2, इसका स्क्वायर कर दो तो R2 इज इक्वल टू K a by 2, हाफ कर रहे हैं ना इनिशियली कंसंट्रेशन का, a by 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, तो अपने पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू K a स्क्वायर अपॉन 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K a स्क्वायर अपॉन K a स्क्वायर अपॉन 4, K to K कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4 बाय 1, तो अपने पास जो R2 आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, R1 बाय 4, 1/4 हो जाएगी। R1 इनिशियली जो सेकेंडरी जो सेकंड अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियली कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, 1/4, कितना हो जाएगा भाई, ये 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चनों को आप सोल्व करना, बाकी मैं भी करूंगा, नेक्स्ट डे कराऊंगा बाकी। ओके, थैंक यू।